Hello children, this is Suchita ma'am and I am going to today start with a supplementary lesson of English. Okay, so listen carefully, enjoy the story. It's a very interesting story about a thief, right? What is the name? The Thief's Story. Okay, so I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand का मतलब होता है he was very good at whatever he was doing. He was very good in it. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Wrestling match, you understand no? कुश्ती, WWF वाले कैसे खेलते हैं ना वैसे कुश्ती. So Anil was about 25, a tall, lean fellow. Lean का मतलब होता है thin, THIN, thin. And he looked easy going. Easy going मतलब easy to get adjusted with, है ना. उसको कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का इंसान नहीं था. And simple, ये simple इंसान था एक. Enough for my purpose. Now because our narrator, जिसका नाम आगे आएगा हरी सिंह, वो कैसा था? चोर था. तो उसको क्या था? उसको सिंपल लोग चाहिए ताकि वो उसको इजीली चीट कर सके. व्हाट वाज हिज पर्पस? हिज पर्पस वाज टू चीट एंड टू स्टील. क्योंकि वो कौन है? थीफ. तो उसको अनिल वैसा बराबर टारगेट लगा. ठीक है, तो उसने टारगेट तो पसंद कर लिया. किसको पसंद किया? अनिल को, ताकि उसको चीट कर सके. तो अभी उसको वो थोड़ा सा दोस्ती करने के लिए पास में जाएगा. I hadn't had much luck and I thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी तक उसको काफ़ी टाइम से चोरी करने का मौका नहीं मिला, तो अभी उसको लगा कि ये यंग मैन के कॉन्फिडेंस को मैं जीत सकता हूँ. You look a bit of a wrestler yourself. वो उसकी तारीफ कर रहा है कि तुम खुद भी कुश्तीबाज के जैसे लगते हो. I said, a little flattery in making friends. He was trying to use flattery. मतलब क्या? To say good things, to please someone. उसको क्या बोला जाता है? Flattery. So do you? He replied. अनिल ने क्या बोला? हाँ, तू भी तो रेस्लर ही लगता है. लेकिन एक्चुअल में हरी सिंह जो था अपना चोर, वो कैसा था? थिन था. इसलिए उसको वो अच्छा नहीं लगा उसका कमेंट. Which put me off for a moment because that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैं भी थोड़ा बहुत, modestly मतलब politely, वहाँ पे लिखा है देखो मैंने, थोड़ा बहुत मैं भी कुश्ती करता हूँ. ऐसी वो बातें बना रहा है. What's your name? Now Anil asked him कि what's your name? Hari Singh. I lied. Now the 15-year-old boy who is a thief is not giving his real name. पूरे चैप्टर में उसका रियल नेम तो आया ही नहीं है, तो हम उसको कौन से नाम से जानने वाले हैं? हरी सिंह. I took a new name every month. ठीक है, हर साल हर महीने में अपना नाम वो बदल देता था. To keep ahead of the police and my former employers. पहले जहाँ उसने नौकरी की थी, वो उसके एम्प्लॉयर्स, उनको भी उसने चीट किया था. पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी. ये दोनों से छुपने के लिए every month he changed his name. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. WWF. You must have seen ना sometimes उसके videos. तो वो कैसे grunting, lifting, throwing करते ना. grunting करना मतलब आवाज़ निकालना, एक दूसरे को उठाना, lifting और फेंकना, है ना. ऐसा सब वो लोग करते रहते वो रिंग के अंदर. तो that is what the wrestlers were doing. Okay. Anil walked away. I followed casually. ऐसे बोल के, जिसके ऊपर I did not have much to say. ऐसे थोड़ा थोड़ा वो बुक बाइंडिंग के वैसे वर्ड्स दिखते नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू वो क्या है. I did not have much to say. उसके ऊपर हरी सिंह को कोई कमेंट नहीं करनी थी. Anil walked away. I followed casually. Here I is who? I is the thief. Or what is the name of the thief? Hari Singh. Is it the real name?
No, it is not the real name. He changes his name every month. तो अभी अनिल बात करके वहाँ से चला गया, तो ये उसके पीछे पीछे हो लिया. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. अभी he was trying to please him because he wanted to get into his confidence. उसके साथ जाना चाहता है ताकि चोरी कर सके. तो उसने बोला बहुत ही अच्छा स्वीट अपीलिंग अट्रैक्टिव स्माइल दिया. I want to work for you. तो क्या बोला है हरि सिंह ने अनिल को कि I want to work for you. तो अनिल ने बोला बट आई कांट पे यू, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है, है ना, कोई मैं तुझे एम्प्लॉय करके सैलरी तो दे सकता नहीं हूँ. तो ये सोच में पड़ गया हरि सिंह. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कैन यू फीड मी. फिर उसने बोला चलो कुछ गलती हो गई, ये ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं है. फिर भी उसने चांस लेने का सोचा. उसने बोला कैन यू फीड मी, मुझे खाना तो दे सकोगे ना. तो उसके बदले में अनिल ने पूछा कैन यू कुक. तो उनका एक डील चल रहा है, अगर तुम कुक कर सको तो तुम काम कर सकते हो, तो खाना भी मिलेगा. तो इसने फिर से झूठ बोल दिया आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. हरि सिंह ने फिर से झूठ बोला इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. उसकी रूम कहाँ पे थी, एक स्वीट शॉप के ऊपर, जो स्वीट शॉप का नाम है जमुना, उसके ऊपर उसकी एक रेंटेड रूम थी. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. कहाँ पे सोने को बोला, उसकी कोई ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है लेकिन एक बालकनी है, वहाँ पे कौन सोएगा, हरि सिंह. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. इतना गंदा उसने खाना बनाया क्योंकि किसको खाना बनाना आता नहीं था, हरि सिंह को. तो हरि सिंह का बनाया हुआ खाना कोई खा नहीं सका और कुत्ते को देने लगा पड़ा. तो इट वॉज गिवन टू द स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग मतलब he was not a pet dog. पेट डॉग नहीं था, स्ट्रे डॉग था. एंड टोल्ड मी, जो रास्ते पे घूमने वाले वो स्ट्रे डॉग. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. अभी उसे बोला चला जा अभी. तो बी ऑफ मीन्स गो अवे. बट आई जस्ट हंग अराउंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी ऑफ, गो अवे. बट हु हंग अराउंड, आवर हरि सिंह. ही डिड नॉट वांट टू गो. तो वहीं पे वो रुका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वो ऐसे हंसता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. तो थोड़ा सा किसको हंसी आ गई है अभी, हरि सिंह को हंसते हुए देख के. अनिल भी हंसा है और वो फंसा भी है. जो हंसा वो फंसा, सही है ना. अब देखो कैसे फंसता है. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. बट अनिल के बारे में अपने को ये पता चलता है कि ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, इसलिए उसने उसको खाना भी नहीं बनाना आता, झूठ भी बोल रहा है, फिर भी उसको माफ़ कर दिया. Later he patted me on the head and said, never mind. क्या बोला उसने, never mind, कोई बात नहीं. He would teach me to cook. वो बोला कि मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. अभी उसको क्या क्या सिखाने वाला है, उसने नाम लिखना सिखा दिया और उसने बोला अभी पूरा पूरा सेंटेंस लिखना भी मैं तुमको सिखा दूंगा, नंबर्स का एडिशन भी मैं तुमको सिखा दूंगा. आई वॉज ग्रेटफुल. तो उसको ऐसे तो कभी किसी ने ट्रीट ही नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है इंसान अनिल, जो कि उसको भी आगे लाना चाहता है, इसलिए वो उसको एजुकेशन देना चाहता है. अभी तक इतना इंटरेस्ट किसी ने भी हरि सिंह में लिया नहीं. आई न्यू दैट वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. उसको इतना तो समझ में आता था कि अगर लिखना पढ़ना आ गया तो उसको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा. ही कुड अचीव, उसको बहुत बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं. तो अभी ये क्या है, अभी भी इसका हरि सिंह का दिमाग उल्टा ही चल रहा है. उसको लगता है कि हर चीज़ का फ़ायदा उसको चोरी करने में ही अच्छे से होगा. पढ़ लिखेगा तो पढ़े लिखे लोगों के साथ उसको नौकरी करने को मिलेगा, तो बड़ा बड़ा उसका स्टीलिंग होगा. ही कैन स्टील बिग अमाउंट्स. वो ऐसे उल्टे ही सोच रहे हैं अभी. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. बट अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. सुबह चाय बनाता था हरि सिंह और फिर चीज़ें खरीदने चला जाता था. यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे. अभी उसमें भी वो क्या करता था, जितने पैसे अनिल ने दिए होंगे उसमें से एक रुपया अपने लिए
चोरी छुपे रख देता था। 1 रुपये की चोरी वो रोज करता था। He used to steal 1 rupee every day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. It is not as if Anil did not understand. Anil was understanding everything कि कैसे 1-1 रुपया गायब होता है. But Anil did not mind. He thought ठीक है 1 ही रुपया ले रहा है तो he did not seem to mind. अनिल को पता था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। अभी तक क्या क्या स्टोरी हुई, चलो क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। थीफ कौन है? हु इज द थीफ? हरी सिंह। इज इट द रियल नेम? नो। व्हाट इज हिज एज? 15 years old. ही इज एक्सपर्ट इन स्टीलिंग, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया है? फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ही गेट्स फ्रेंडली विथ अनिल हु इज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। हाउ ही गेट्स फ्रेंडली? बाय यूजिंग फ्लैटरी, मतलब झूठी तारीफ करना, उसको फ्लैटरी बोला जाता है। टू प्रेज समवन फॉर सम मोटिव, फॉर सम सेल्फिश मोटिव, उसको फ्लैटरी बोलते हैं। एंड ही गेव हिज मोस्ट चार्मिंग स्माइल, है ना, ऐसे हंसते हुए उसको तरफ देख रहा था। प्रॉमिस टू कुक इफ ही अलाउड टू वर्क फॉर अनिल। उसने क्या बोला कि आई विल कुक। डिड ही नॉट टू कुक? नो, दो ही कुडंट कुक। फिर से वो झूठ तो बहुत बोल रहा है। अनिल स्टिल केप्ट हिम, अनिल अपने साथ उसको रूम में ले गया। हरी सिंह मेड मॉर्निंग टी, वेंट टू मार्केट टू गेट सप्लाईज, केप्ट 1 rupee फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम इट। एवरी डे ही स्टोल 1 rupee। ठीक है। चीटिंग अनिल, उसने क्या किया? वो 1 रुपया लेके ही चीट कर रहा था अनिल को। बट अनिल नेवर सेड एनीथिंग। अनिल टॉट हिम टू रीड एंड राइट। अनिल उसके बदले में उसको डांटता भी नहीं था और ऊपर से उसको क्या करता था? लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था। हरी सिंह प्लान टू लर्न एंड रीच हाई लिमिट्स इन हिज ट्रेड ऑफ स्टीलिंग। पढ़ लिख के ये क्या करेगा? स्टीलिंग के काम में ही उसको और ऊपर जाने में वो यूज करेगा। He had key to अनिल्स रूम। अभी ऊपर से अनिल की रूम की चाबी भी हरी सिंह को अनिल ने दे के रखी है ताकि दोनों जब चाहे रूम में आ सके। अभी आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब हियर एंड देयर। समटाइम्स ही गॉट मनी, समटाइम्स ही डिड नॉट गेट। तो व्हाट वाज हिज वर्क? ही वाज एक्चुअली अ राइटर। He would borrow 1 week and he would lend the next. कभी किसी के साथ पैसे बोरो करता था तो ज़्यादा पैसे आ गए तो किसी को वो लेंड भी करता था, देता भी था। He kept worrying about his next check. तो हमेशा उसके पास पैसे रहते नहीं थे। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो उसको एक आदत थी, पैसे आ गए तो खर्च कर डालता था, सेलिब्रेट करता था। It seems he wrote for magazines. A queer way of living. अभी ये इसको अलग लग रहा है उसका ये तरीका जीने का। क्वियर मतलब स्ट्रेंज। What was the strange way that Anil made money from? He wrote for magazines. He wrote for publishers. So he was a writer in short. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to the publisher. एक दिन उसका पूरा बुक एक पब्लिशर ने ले लिया तो उसको काफ़ी सारे पैसे मिले। At night I saw him tuck the bundle under the mattress. रात को हरी सिंह ने देखा कि अनिल मैट्रेस गद्दे के नीचे ही नोट्स रख के सो गया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, जो 1 rupee का everyday stealing वो करता था, had not done anything in my line for a while. काफ़ी टाइम से उसने ऐसा कोई काम किया नहीं। Though had every opportunity of doing it. फिर भी उसके पास अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन घर में पैसे ही नहीं था ना। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द रूम, ये हमने पहले ही देखा है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल की क्या क्वालिटी है? अनिल इज काइंड, अनिल इज ट्रस्टिंग, है ना, अनिल इज केयरिंग एंड अनिल वॉन्ट्स हरी सिंह टू progress, so he is trying to teach him reading and writing. So he is a very good person and that is why it was difficult to rob him. Up till now he had robbed many people but those people also
were not so good. It's easy to rob a greedy man. अभी वो बता रहे, देखो जो greedy होते हैं ना, जिनको लालची होते हैं, because he can afford to be robbed. जो लालची होते हैं उन्होंने बहुत सारा धन जमा करके रखा होता है, तो they can afford to be robbed. एक पूरे तालाब में से थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कौन सोचता था? हरी सिंह. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन अनिल कैसा था केयरलेस, देखो पैसे भी कैसे रख दिया अंडर द मैट्रेस. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. वो बोलते कि अनिल इतना केयरलेस था और अनिल को वे तो रोज़ 1 रुपया निकाल लेता था. अब अनिल को तो पता चल रहा होगा तो भी अनिल वो माइंड नहीं करता था. लेकिन अगर ऐसा किसी ने नोटिस ही ना करे तो वो चोरी करने वाले का भी प्लेजर काम में से निकल जाता है. तो ऐसी सब बात, दिमाग कैसे हरी सिंह का चलता है अपने को पता चल रहा है. Well, it's time I did some real work. So now Hari Singh has seen the bundle of notes and he wants to do some real work. And what is his real work? To steal. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. अभी एक्सक्यूज अपने को दे रहा है कि अभी इसको मैं चुरा लेता हूँ, नहीं तो ये क्या करेगा, सेलिब्रेट करके पैसे उड़ा देगा. एंड ही डजेंट इवन पे मी. और वैसे मैं काम करते उसके पैसे तो ये देता नहीं है, तो अभी उसने सोच लिया कि चोरी करनी है. इस तरह से उसने जाके धीरे से नीचे से पैसे निकाल लिए. ओके, सो दिस इज हरी सिंह स्टीलिंग. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the face and fell on the bed. तो वो सोया हुआ था अनिल. I sat up on the floor considering the situation. अभी वो सोच रहे कि ये तो सोया हुआ है, अच्छा चांस है. तो उसने आगे का भी प्लानिंग कर लिया कि 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ने की और लखनऊ भाग जाने का. I crept up to the bed. बेड के पास चला गया अनिल के. अनिल was sleeping. His face was clear and unlined. यंग था ना वो. Even I had more marks on my face due to scars. Even though Hari Singh was only 15, he had some marks on the face and those were mostly scars. जख्मों के निशान थे, क्योंकि उसका पेशा ही चोरी करने का है, तो कभी मार भी बहुत खाई होगी, तो उसके scars यानी कि निशान. So he had the scars, he had the lines from the injuries. Okay, marks जिसको बोलते, scars का मतलब होता है marks. And Anil's face was clear. My hand slid under the mattress searching for the bundle. I found them. I drew them out without a sound. अब वो एक्सपर्ट है तो उसने धीरे से पैसे खिसका लिए. अनिल सिंह turned on his side towards me. इतने में नींद में अनिल ने करवट बदली. I was startled. He was shocked and ran and क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. जो वर्ड वहाँ पे दब गया वो कौन सा, क्राउल्ड. मतलब वो घुटनों के बल, हमने फोटो में अभी देखा ना, घुटनों के बल वो कैसे चोरी करने गया था, वो घुटनों के बल ही बाहर घर से निकल गया. तो वो निकल गया रूम से बाहर. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. फिर वो नीचे उतरा, घर के बाहर आया और वो रास्ते पे पहुँचने के बाद दौड़ने लगा. I had the notes held there by the strings of my pajamas. उसने अपने पैजामा के स्ट्रिंग के अंदर ही नोट्स को रख दिया था. स्ट्रिंग से उसने पकड़ के रखा था नोट्स को. I slowed down and counted the notes. 600 rupees in 50s. वो 50-50 के नोट थे और टोटल कितने थे, 600. I could live like an Arab for a week or two. जो ऑयल रिच अरब होते हैं, ऑयल बेचने वाले अरब, उनके जैसा वो क्या बोल रहे हैं, मैं 2 वीक तक तो अच्छे से जी सकता हूँ. सॉरी. अभी अनिल हैज स्टोलन द मनी. ठीक है. एंड देन ही वांटेड टू कैच द ट्रेन, सो ही वेंट टू द स्टेशन. बट एट द स्टेशन द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव. But for some reason, Hari Singh did not get in the train. He had gone to the railway station. He did not take a ticket also because he was a thief, na. He was not a straightforward man. तो उसको तो ऐसे ही जर्नी करना था without ticket.
लेकिन अंदर घुसने के बाद भी उसने देखा कि ट्रेन अब भी चालू ही हुई है, वो आराम से चढ़ सकता था लेकिन वो चढ़ा नहीं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि उसने क्या किया, ट्रेन को जाने दिया और उसका भागने का चांस चला गया। फिर वो बाहर निकलता है वहाँ से एंड देन ही सिट्स इन अ मैदान ऑन अ बेंच एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग। तो ऑल द टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट हरी सिंह। फिर वहाँ से क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। इट स्टार्टेड रेनिंग एंड देन व्हाट हैपेंड, he had to get up, so he got up and he started going towards the bazaar जहाँ पे हरी सिंह का घर था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. बाजार में जाके क्लॉक टावर के शेल्टर में वो बैठ जाता है। The clock showed midnight. अभी 10:30 की ट्रेन तो चली गई, थोड़ी देर मैदान में बैठा, अभी बाजार में आ गया, बारिश भी बीच में बहुत सारी हो गई, तो क्या हो गया, 12 बज गए। I felt for the notes, they were damp from the rain. बारिश की वजह से नोट्स कैसे हो गई, एकदम भीग गई है। किसका पैसा था वो, अनिल्स मनी। In the morning he would probably have given me 2-3 rupees to go to cinema. इतना अनिल काइंड था, he was sure कि सुबह इतने पैसे मिलने के बाद वो थोड़े पैसे हरी सिंह को भी दे देता। But now I had it all. अब तो सब हरी सिंह के पास ही है। I couldn't cook meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अभी कौन सा चांस उसका हो गया, अभी वो अनिल के लिए खाना नहीं बना सकता, अनिल के लिए सामान नहीं ला सकता और अनिल के पास से वो लिखना पढ़ना सीख नहीं सकता। ये सारे विचार अब उसको आने लगे, उसको अनिल के बारे में बहुत सारे ख्याल आने लगे और कैसे अनिल काइंडली उसको रखता था, कैसे लिखना पढ़ना सिखाता था, ये उसको याद आने लगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी की एक्साइटमेंट में क्या हो गया था, he had forgotten कि लिखना पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। I knew could one day bring me more than a few hundred. ठीक है, उसने क्या सोचा, राइटिंग से क्या होगा, ज़्यादा पैसे वो आगे जाके कमा सकता है, जितना चोरी से कमाता है उससे कई ज़्यादा, और इज्जत भी मिलेगी ना। ये सब उसको अब समझ में आया। It was a simple matter to steal, sometimes just as simple to be caught. वो सोचते कि चोरी करना और चोरी करके पकड़े जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल बातें हैं। But to be really a big man, a clever and respected man. अब उसका मन क्या चाहता है, अनिल के जैसे उसको बनना है। अनिल कैसे एक रिस्पेक्टेड मैन है, वैसे उसको बिग मैन बनना है, उसकी तरह क्लेवर बनना है। And to be a really big man, clever and respected man was something else. अभी उसको वो ऐसे सब अच्छे ख्याल दिमाग में आने लगे। तो उसने क्या सोचा, I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. पढ़ाई लिखाई में अभी उसको लगा कि सबसे दुनिया में अच्छी चीज़ पढ़ना लिखना है और वो सीखने के लिए अनिल के पास जाना चाहता है। I hurried back to the room feeling very nervous. अभी नर्वस है क्योंकि पैसा चुरा के भागा है। For it is most easier to steal something than to return it undetected. अभी उसको क्या करना है, अनिल को पता चले उसके पहले वो पैसा उसको जगह पे रख देना है। उसको कैसे रखना है, अनडिटेक्टेड, विदाउट एनीबडी फाइंडिंग, उसको क्या बोलते हैं, अनडिटेक्टेड। I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. अनिल वॉज स्टिल asleep. अभी लकीली अनिल अभी तक सोया हुआ है। I crept to the head of the bed. धीरे से वो गया बेड के पास। My hand came with the notes. नोट्स उसने लिए। I felt his breath on my hand. जब वो रखने लगा तो अनिल की ब्रेथ उसको अपने हाथ के ऊपर फील हुई, उसका श्वास फील हुआ। I remained still for a minute. तो वो थोड़ा रुक गया। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो उसके हाथ ने फिर क्या किया, मैट्रेस के किनारे से पैसे अंदर सरका दिए। I woke up late to find that Anil had already made the tea. दूसरे दिन सुबह वो लेट उठा हरी सिंह, तब तक अनिल ने चाय बना दी थी। अभी तक की स्टोरी फिर से देखते हैं। कैसे उसने चोरी की, अनिल was asleep. Hari Singh slid his hand under the mattress and took the bundle of notes without a sound. Anil turned in sleep towards Hari Singh. फिर भी क्या हुआ, हरी सिंह
तुरंत he was startled and Hari Singh went out. कैसे ही crawled out. Once on the road he started running. Bundle of notes were tucked in, held by the string of the pajamas. He counted them. Total कितने थे? 600 rupees. और कौन सी नोट्स थी? सभी 50s की. Good to live like an Arab for 2 weeks. ऐसे सोच के वो वहाँ से भागा. और उसका क्या प्लानिंग था? To catch the 10:30 express to Lucknow. He didn't buy the ticket at the station. The train was just moving out. He could get in, but for some reason he did not. He hesitated and missed it. फिर से देखो. Hari Singh planned to catch the 10:30 express. He did not buy the ticket. The train was just moving out. He could get in, but for a reason he did not. He hesitated and missed it. 2 सेकंड के लिए जो वो रुक गया, उसमें ट्रेन चली गई. He stood alone on the deserted platform. और फिर वहाँ पे वो अकेला खड़ा रहा. He had nowhere to go, no friends. किसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे? हरी सिंह के कोई फ्रेंड्स नहीं थे. He knew Anil would be sad as the trust was broken. उसके दिमाग में अनिल का ख्याल आ रहा था क्योंकि अनिल ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था. And he had broken his trust. तो he thought Anil would be sad. तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये बातें सोच के. तो ये हमने सब देख चुके हैं हम लोग कि कैसे वो वापस गया और कैसे उसने मैट्रेस के अंडर नोट्स रख दिए. तो दूसरे दिन सुबह आई वोक अप लेट टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. अभी अनिल उसके पास आया तो उसने क्या डांटा उसको? उसने डांटा नहीं, उसने हाथ आगे बढ़ाया. देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. और उसने क्या दी उसको? 50 रुपी की एक नोट दी. माई हार्ट सैंक. अभी क्या हुआ? उसको डर लगने लगा कि उसको लगा कि अभी उसकी चोरी पकड़ी गई. लेकिन उसने क्या किया? इसने तो पैसे दिए. आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने बोला कि अभी मैं तुझे पैसा पेमेंट हर बार रेगुलरली दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ. तो उसको क्या लगा कि अरे इसको पता ही नहीं चला, मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई. लेकिन जब उसने वो नोट अच्छी तरह देखी तो कैसी थी? वो अभी तक वेट थी. वेट क्यों थी? क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी. तो क्या गद्दे के नीचे पड़े पड़े नोट भीग तो नहीं सकती? यानी कि अनिल को हर बार सब कुछ पता चल जाता था. अभी भी उसको पता चला है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो एक अलग इंसान है. उसने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो उसको सुधारना चाहता है. He wants to give him a chance to become a good person. इसीलिए अनिल did not say anything. लेकिन उसने क्या बोला? Now you will be paid regularly. तो उसको लगा कि पैसे मैं इसको रेगुलरली दूंगा तो ये चोरी करना भूल जाएगा. ठीक है. I saw it was still wet from the night's rain. So do you think Anil understood about the stealing or not? Yes. From what we can come to know? Because the notes were all wet in the rain. Because of the rain they had all become wet and still they were wet. तो नेचुरली अनिल को पता चल ही गया होगा. माई स्पिरिट्स रोज. और लेकिन जब नोट देखी तो उसको पता चला कि अनिल को सब पता है क्योंकि नोट्स वेट थी. फ्रॉम द नाइट्स रेन. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. लेकिन अनिल ने सब पॉजिटिव बातें की, उसको बिल्कुल डांटा नहीं. क्या बोला? आज से हम लिखना, सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे. ही न्यू. तो अभी हरी सिंह को पता चला क्या? अनिल हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. लेकिन उसने जरा भी बताया नहीं. आई स्माइल्ड एट अनिल इन अ मोस्ट अपीलिंग वे. फिर क्या किया हरी सिंह ने? उसको थैंक यू करने के लिए एक बहुत ही मीठी स्माइल दे दी. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ. लेकिन दिस टाइम इट वाज अ रियल स्माइल. ओके. विदाउट एनी एफर्ट. उसने झूठी झूठी नहीं, रियल वाली स्माइल दे दी. बिकॉज he liked Anil very much and he wanted to become a honest man. Okay. So let us look at it again. Hari Singh returns home. After stealing money, Hari Singh sat on the bench in a मैदान. मैदान होता है ground. It was chilly November night. It started raining heavily. जब वो बैठा था ग्राउंड पे, बेंच पे, तो क्या हो गई? बारिश हो गई.
हरी सिंह वॉक टू द बाजार, तो उसको उठना पड़ा वहाँ से और वो बाजार की तरफ चला गया। ही सैट इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, कहाँ बैठा फिर वो? क्लॉक टावर के नीचे थोड़ी देर बैठा रहा। ही थॉट ऑफ अनिल, ही हैड फॉरगॉटन अबाउट लर्निंग होल सेंटेंसेस इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, लेकिन अब उसको वो याद आया कि लिखना पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको क्या लगा, इट वॉज सिंपल टू स्टील और टू गेट कॉट बट इट वॉज डिफरेंट टू बी अ रियल बिग मैन बाय नोइंग टू राइट सेंटेंसेस। तो वो अभी ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहता है। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल टू रीड एंड राइट। थोड़ा थोड़ा वर्ड्स चले गए, दैट इज टू रीड एंड राइट, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड नाउ व्हाई ही रिटर्न्ड होम। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तुमको आंसर लिखने को आने चाहिए। अभी एंड में अनिल की रिएक्शन क्या थी जब उसको पता चला कि उसने चोरी की है, वो हम फिर से देखते हैं। When Hari Singh woke up next morning, Anil was already awake. Tea was also ready. Anil had prepared tea. Anil stretched his hand towards Hari. A damp 50 rupee note in his hand. उसके हाथ में क्या थी? A damp 50 rupee note. Hari Singh's heart sank. Anil knew. उसको कैसे पता चला कि अनिल को पता है? क्योंकि बारिश से पूरी नोटें भीग गई थी। I made some money yesterday. But did Anil scold him? No. He just told him that I made some money and now I'm going to pay you regularly. He also said that he would pay Hari regularly. Is Hari Singh the real name? No. It is a false name. So he had forgiven him. He means Anil had forgiven Hari Singh. Why? Because he wanted to give Hari Singh a chance to become a good person. Hari's spirits rose. He was happy. जब उसने देखा कि वो गुस्सा नहीं है, उसने माफ़ किया है, तो वो हैप्पी हो गया। अनिल सेड ही वुड टीच हिम राइटिंग सेंटेंसेस। तो फिर क्या हुआ? हरी सिंह गेव हिम अ रियल स्वीट स्माइल। तो अभी हरी सिंह एक अच्छा इंसान बनने वाला है। और ये किसकी विक्ट्री है? ये अनिल की विक्ट्री है, क्योंकि ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड पर्सन एंड सो बाय पुटिंग एग्जाम्पल हरी सिंह ऑल्सो वॉन्टेड टू बी लाइक हिम। नाउ वी आर गोइंग टू stop here. If you have the books, you read the lesson. Otherwise, I have explained it to you in detail. और जो point wise मैंने stories discuss की है, it will be easier for you to revise it. Thank you.